Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is The Necklace, which is written by Guillaume Pesso. Basically, this author was a French writer who was born on 5 August 1850 and died on 6 July 1893, who was a novelist, short story writer, and a poet. So, let us continue with the chapter The Necklace. As you will go through the story, you may took an idea what would be the story about. As the name suggests that this story is about a necklace, a neck piece. Before moving ahead, let us learn about the characters of the story. There are three main characters of the story: Madame Forestier, Madame Matilda, and Louis. So, in this video, I will be brief you out about the summary of the chapter The Necklace. Basically, this story is about a woman named as Matilda. She was born in a poor family, but her dreams were too much high. बहुत ज़्यादा ऊंचे उसके ड्रीम थे. Since her childhood, she wants to wear beautiful dresses, she wants to go in the parties, and she wants expensive things. So her dreams were too high, but her dreams never became true. As after marriage also, when she was young, when she was an adult, so then also she married to the clerk of a family. She married to a clerk, so he was also not that much rich, he was poor also. So she used to remain quiet and does not talk to some other person too much, as she so let us start with the summary of the chapter. The Necklace. The Necklace tells the story of Madame Matilda, Louise, and her husband. Matilda always imagined herself in a high society position with wonderful jewels. However, she has nothing and marries a low paid clerk who tries his best to make her happy. So, I have already told you that Madame Matilda was not much rich, but still her dreams were too much high. She married to a poor clerk or low paid clerk, we can say, but he always tried to make her best. He always tried to do his best so that his wife could be happy. Through lots of begging at work, he is able to get two invitations to the Ministry of the Public Instruction Party. Matilda then refuses to go. So one day, when Louis came home with an invitation, he was thinking that Matilda would be happy after getting this invitation. But when he saw that invitation to her wife, she was not happy, just because she was not having anything to wear in that party. Matilda then refuses to go. वो मना कर देती है. For she has nothing to wear, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है. अब उसका हस्बैंड पूछता है, Why you are refusing? क्यों मना कर रही हो? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें तो बहुत पसंद है जाना ऐसी पार्टीज़ में, तुम्हें तो बहुत पसंद है रिच पार्टीज़ में जाना, अच्छे कपड़े पहना, तुम्हें क्यों नहीं जाना है? देन शी रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है
दैट शी इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग टू वियर, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, हाई सोसाइटी के लोग आएंगे, तो उसे नहीं उन लोगों के बीच में अपना मजाक बनवाना। दैट इज़ वाई शी रिफ्यूज़ टू गो देयर, और कहती है तुम एक काम करो, इस इनविटेशन को किसी और को दे आओ और वो चले जाएंगे। After listening it, her husband is upset to see her displeasure and using money that he was saving to buy a rifle. अब ये सोचकर कि उसकी वाइफ जो है, उसने चाहे उसे पसंद है हाई सोसाइटी प्रोफाइल की तरह रहना, बट स्टिल उसने कभी भी अपने हस्बैंड से कुछ नहीं मांगा था। तो वो क्या कहता है कि नहीं, हम यहाँ ज़रूर जाएंगे, तो मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी ड्रेस है वो कितने की आएगी। देन शी सेड कि नियर अबाउट 400 फ्रैंक्स की मेरी ड्रेस आ जाएगी। अब उसका हस्बैंड जो है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो अमाउंट था, फ्रैंक्स इज़ अ करेंसी, फ्रैंक जो है करेंसी है, तो इतना अमाउंट वो कहाँ से लाएगा। स्टिल वो अपनी राइफ़ल लेने के लिए मनी सेव कर रहा होता है। वो क्या कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ड्रेस ले लो और ये लो मनी। वो उसे मनी देता है और ड्रेस लाने के लिए भेज देता है। ही लेट्स मेटलिंडा बाय अ ड्रेस दैट सूट्स हर, कोई जो भी ड्रेस उसे पसंद आई वो उसने उसे खरीदने दी। बट मेटलिंडा इज़ स्टिल नॉट हैप्पी। अब जैसे जैसे दिन पास आता है बोल का, अब वो खुश होने की बजाय और ज़्यादा दुखी हो जाती है। नाउ अगेन हर हस्बैंड आस्क्ड, दोबारा से पूछता है कि अब क्यों तुम उदास हो। तो यहाँ पर मेटिल्डा क्या कहती है कि ठीक है, ड्रेस तो मैंने ले ली है, पर वहाँ पर सब बहुत अच्छी डायमंड की और हैवी हैवी ज्वेलरी डाल के आएंगे, अब मेरे पास कुछ भी ज्वेलरी डालने के लिए नहीं है। सो हर हस्बैंड सजेस्ट दैट टू वियर द ज्वेलरी ऑफ फ्लावर्स। अब उसने क्या कहा कि तुम एक काम करो, तुम फ्रेश फ्लावर्स लो, उसकी ज्वेलरी बनाओ और वो डाल लेना, तो वैसे ही इतनी सुंदर हो तो तुम और ज़्यादा सुंदर लगोगी। पर उसकी वाइफ ने मना कर दिया, तो वो दोबारा से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। देन शी वॉन्ट्स ज्वेल्स टू वियर विद इट सिंस दे हैव नो मनी लेफ्ट। अब उनके पास उस ड्रेस लेने के बाद कोई भी मनी नहीं बची थी। हर हस्बैंड सजेस्ट दैट शी बोरो समथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड। अब क्या उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी एक फ्रेंड भी तो है जो बहुत रिच है, तुम उससे क्यों बोरो नहीं कर लेती कोई ज्वेलरी एक दिन के लिए पहनने के लिए। तो ये जो आइडिया है मेटलिंडा को पसंद आया कि हाँ, मैं अपनी फ्रेंड से बोरो कर लेती हूँ। that she borrow something from her friend, मैडम जेने फॉरेस्टर। मैम फॉरेस्टर से मेटलिंडा पिक्स आउट द फैंसीएस्ट ज्वेल्स नेकलेस दैट शी कैन फाइंड। अब मेटलिंडा ने जो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उससे एक दिन नेकलेस के लिए पूछती है, तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड के पास जितने भी नेकलेस होते हैं वो सब वो निकाल कर रख देती है। तो मेटलिंडा क्या करती है, एक एक नेक पीस को आराम से उठाती है और अपनी ड्रेस के साथ मैच करते हुए डालकर देखती है कि वेदर इट इज़ सूटिंग हर और नॉट, उसे अच्छा लग रहा है ड्रेस के साथ या नहीं लग रहा। वो हर एक नेक पीस को उठाकर और डालकर देखती है, पर उसे कोई भी नेक पीस पसंद नहीं आता अपनी ड्रेस के साथ। तो वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास और नहीं है, तो मैडम फॉरेस्टर क्या कहती है, हाँ बहुत सारे हैं, तुम देखो जो तुम्हें ठीक लगे। सो देयर वॉज अ ब्लैक बैग, रखा हुआ था एक ब्लैक बैग। तो मेटलिंडा पूछती है कि इसमें क्या है, तो फॉरेस्टर कहती है कि इसमें भी एक नेकलेस है, तुम देख सकती हो। व्हेन शी ओपन दैट, वो जब उसे ओपन करती है तो देयर वॉज अ डायमंड नेकलेस इन दैट, एक डायमंड नेकलेस उसमें होता है। मेटलिंडा को वो देखते ही पसंद आता है। आफ्टर अटेंडिंग द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पार्टी, अब वो बोरो करके अपने घर चल जाते हैं और बॉल का दिन आता है। वो बहुत अच्छे से रेडी होते हैं उस ड्रेस के साथ, उस नेक पीस के साथ, उस नेकलेस के साथ। शी वॉज लुकिंग टू मच प्रिटी, हर कोई उसकी
तारीफ़ करता है बॉल पार्टी में, हर कोई उसे प्रेज़ करता है। जो वहाँ पर जेंट्स होते हैं, जो वहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब मैटिल्डा के बारे में पूछ रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही होती है। अब मैटिल्डा के लिए ये बहुत अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसने विक्ट्री हासिल की है, जीत हासिल की है अपने नेक पीस और अपने ड्रेस के साथ। नाउ इट इज़ 4 ऑलरेडी, 4 बज जाते हैं रात के, मॉर्निंग के। तो अब उन्हें वापस आना होता है, तो एक एक करके सब वापस चल जाते हैं। जब ये पार्टी ख़त्म हो जाती है, मैटिल्डा डिस्कवर दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। उसने अपना नेकलेस खो दिया है। एंड नाउ दे वर टू मच अपसेट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर मच डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, दुखी थे। अब उसका हस्बैंड क्या कहता है कि ठीक है, वो घर वापस आ जाते हैं। तब उसे पता लगता है कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, स्ट्रेस मत लो, मिल जाएगा, जिस कैब से वो आए थे वहाँ पर मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो हर जगह तलाशते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, पर वो नेकलेस उन्हें नहीं मिलता। अब ये मैटिल्डा के लिए शेमफुल बात होती है कि अगर वो अपनी फ्रेंड को कहेगी कि उससे उसका नेक पीस, डायमंड का नेक पीस खो गया है, तो वो क्या कहेगी? वो हो सकता है वो उसे पुलिस में दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो अपने हस्बैंड को क्या कहती है कि एक काम करते हैं, मुझे याद है वो नेक पीस कैसा था, हम जाते हैं और सेम नेक पीस बनवा कर उसे दे देंगे। तो वो क्या जाते हैं ज्वेल्स शॉप पर और सेम नेक पीस बनवाते हैं, जो कि 40,000 फ्रैंक्स का था। बट उन्होंने बार्गेनिंग की, फिर उन्हें वो 30,000 फ्रैंक्स का पड़ा और वो जाकर अपनी फ्रेंड को लौटा देती है। अब यहाँ पर मैटिल्डा को लगता है कि मैंने वापस तो कर दिया, मैंने इतनी सारी मनी बोरो करके इसे वापस तो कर दिया, बट अब अगर इसे पता लगा कि डुप्लीकेट है, वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर जब मैडम फॉरेस्टर उसे खोलती है, उसे कुछ भी पता नहीं लगता और वो उसे रख लेती है। This is the half part of the summary of the chapter, The Necklace. Next half part will be completed in next video. Thank you. Have a good day.